السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں سمیرہ حمید کا لکھا ہوا خوبصورت ناول یارم۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ جلدی سے میرے نئے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کے ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں تاکہ جب بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ تو چلیں ناول کا اگلا پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مینچسٹر کے راج ہنس، تم نے مسکرانا کم کر دیا ہے یا کفایت کر رہی ہو؟ دادا پوچھ رہے تھے۔ بہت بار پوچھ چکے تھے۔ تھک جاتی ہوں نا۔ مشکل ہے زندگی؟ مشکل تو ہے۔ وہ دادا کو نہ بتا سکی کہ کیا مشکل ہے۔ اگر مجھے نہیں بتا سکتی تو سائیں ہے نا۔ آپ سائیں سے پہلے ہیں میرے لیے دادا۔ پھر بھی کچھ رشتے کتنے ہی قریبی ہوں ان سے سب نہیں کہا جا سکتا۔ دادا ٹھیک کہہ رہے تھے۔ آلیان کی بات کو لے کر وہ سائیں کے پاس ہی گئی تھی۔ دادا اسے وہ سب کہنا چاہتی تھی پر کہہ نہ سکی۔ تمہاری ماں اور دادی دانیہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن تمہارے ماموں نہیں مان رہے۔ کہتے ہیں کہ شادی دھوم دھام سے کرنی ہے۔ ابھی تم لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ کیا بات کی انہوں نے دادا؟ یہی تو میں نے کہا تمہاری ماں سے کہ پوچھو اپنے بھائی سے ہم کیا بھوکے مر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ واجد کی دکان ٹھیک ہو رہی ہے، منافع آنے لگا ہے۔ وہ تمہارے دیے قرض کو جمع کر رہا ہے۔ خاندان کی ایک تقریب میں اس نے کسی سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی میں فضول خرچی نہیں کرے گا۔ تمہارے ماموں کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ بابا کیا کہتے ہیں دادا؟ واجد کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے فضول پیسے ہے ہی نہیں۔ پہلے کی بات اور تھی اور اب جو کچھ جمع تھا وہ سب دکان میں لگ گیا۔ واجد نے برا وقت دیکھا ہے، کسی نے اس برے وقت میں اس کا ساتھ نہیں دیا۔ خاندان میں کسی نے بھی قرض کے نام پر چند ہزار بھی نہ دیے۔ واجد بہت بددل سا ہو گیا ہے۔ سب سے مشکل ہے یہ منگنی رہے۔ واجد نے تو دانیہ سے یہ تک کہہ دیا ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے تمہارے پاس چلی جائے، ہوتی رہے گی شادی سال دو سال میں۔ امراہا واجد کہہ رہا تھا کہ اس کا وہی سکہ اس کے کام آیا جسے اس نے اور خاندان والوں نے کھوٹا سمجھ لیا تھا۔ بہت یاد کرتا ہے تمہیں، بار بار میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوتی رہی ہے۔ امراہا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تو بابا کو احساس ہو گیا؟ دانیہ کیا کہتی ہے؟ صاف کہہ دیا ہے اس نے، مر جاؤں گی کسی دوسرے ملک نہیں جاؤں گی، وہاں پڑھو بھی کام بھی کرو۔ کیا ضرورت ہے اتنے وبال پالنے کی؟ مجھے کون سا منسٹر بننا ہے کسی ملک کا؟ یا فون پر لگی رہتی ہے یا سوتی رہتی ہے۔ اتنی آرام دہ زندگی چھوڑنے کی اسے کیا ضرورت ہے بھلا؟ آرام دہ زندگی تو امراہا کی تھی۔ زندگی کی روح کام ہے، صرف کام چلتے رہنا، حرکت میں رہنا، علم کے کام میں مصروف، عمل کے کام میں مصروف۔ اتنی سی زندگی میں انسان کے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ ضائع کرتا پھرے، سو کر، رو کر یا موج مستی میں۔ یہ زندگی انسان کو بھلائی کے کام کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے، خیر اکٹھا کرنے کے لیے۔ اسے کھیل تماشے کی نظر نہیں کیا جا سکتا۔ شفاف میٹھا پانی بھی ٹھہر جائے تو بدبو دینے لگتا ہے، کیچڑ میں بدل جاتا ہے۔ انسان کیوں کر خود کو ٹھہر آ کر برباد کر سکتا ہے؟ کائنات کی ہر شے ہمہ وقت حرکت میں ہے اور تا قیامت رہے گی۔ انسان ساکن ہو کر گناہ کبیرہ کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسانی رتبے کی منافی ہے، سراسر منافی۔ ہنستی رہا کرو امراہا، تمہاری خاموشیاں اتنی گہری کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ دادا کو ایک پاس اس کی ہی فکر تھی۔ امراہا نے دادا کو ہنس کر دکھا دیا۔ ٹھیک اسی وقت کارل اس کے قریب سے استہزائیہ ہنس کر گزرا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو ابھی تمہاری یہ ہنسی بھی غائب کرتا ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ امراہا کو جیسے آگ لگ گئی۔ دادا کو اس نے بائے کہا اور سائیں کے پاس آئی، اور جوتے والے قصے کے بعد اس نے لاکھ ذہن لڑایا لیکن کارل کو مزہ چکھانے کی کوئی ایک بھی ترکیب نہیں سوچ سکی۔ مجھے مشورہ دو۔ سائیں کو ساری بات سنا کر اس نے مشورہ مانگا۔ تھوڑا بہت بدلہ تو جم سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ سائیں ہنسنے لگا۔ ہنستے ہوئے، تم بالکل میرے دادا جی جیسے لگتے ہو۔ کیا تمہارے دادا میرے جیسے جوان ہیں یا میں ان جتنا بوڑھا ہوں؟ ہنستے ہوئے، تم ان جتنے سادہ اور معصوم لگتے ہو۔ امراہا نے ہونٹ سکیرے۔ وہ سائیں کے مشورے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آخر اسے جم کا خیال کیوں نہیں آیا؟
गो ईंट का जवाब पत्थर तो हरगिज नहीं था, लेकिन ईंट का जवाब कुछ तो था, वो भी सिर्फ 5 पाउंड में। इमराहा जिम के पास जाए, पहले हमें उसकी तारीख तक जाना चाहिए। तो जिम की तारीख कुछ यूं थी कि वो अक्सर क्लास में ऊँघता हुआ पाया जाता था। अब पूरी यूनी में वो अकेला तो नहीं था जो ये करता था। कमोबेश यूनी का एक एक स्टूडेंट अपने पूरे तालीमी साल में 40 से 50 बार इस अजीम सानहे से ज़रूर गुजरता। कुछ इस सानहे से ज़्यादा गुजारते, कुछ कम, लेकिन फैज़याब सब ही होते। कुछ क्लास में ऊँघते पाए जाते, कुछ हर जगह, और बहुत से किसी भी जगह, मतलब किसी भी जगह। अब बस में बैठे हैं, आँख खुली, और मैं तो बहुत आगे आ गया। जल्दी से बस बदली, बस चली, आंख फिर से लगी। उफ, मैं तो बहुत पीछे आ गया। पहला लेक्चर गया। जोली कॉफी लेने गई है। जोली वापस नहीं आई। जोली के कॉफी के मग जो बाद अज़ां एक होशमंद रहम दिल स्टूडेंट ने सिर्फ इस ख्याल से उठा लिए हैं कि कॉफी ठंडी होकर बेकार हो जाएगी, और जोली को सोते से उठा देना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। बेचारी सो तो रही है ना, और सोते हुए कितनी प्यारी भी तो लग रही है। खैर, जोली कैंटीन काउंटर पर सर रख के ऊँघ रही है, और काउंटर मैन उस पर पानी के छींटे भी मार चुका है, लेकिन जोली बदस्तूर ऊँघ रही है। काउंटर की तरफ आते किसी मेहरबान ने उसके खुले मुंह की तस्वीर लेकर दी टैब भेज दी है। यानी यूनी के बागों में, दरख्तों तले, क्लास के दौरान, कॉरिडोर में, बाथरूम्स, वॉशरूम्स, बस ट्यूब, बाजार, कैफे, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी में तो खास तौर पर, और कैंटीन में तो जरूर ही। कौन था जो मुंह खोलकर ऊँघता पाया नहीं जाता था? एग्जाम्स के दिनों में तो टेबल और कुर्सियों के नीचे भी, और तो और कूड़ादान की आड़ में छुपकर भी। जब कोई उस ऊँघ से महफूज नहीं तो सजा सिर्फ एक जिम को ही क्यों, और वो तो था ही दूसरी किस्म वालों में से। पहली किस्म आंखें बंद करके कुदरती ऊँघ लेने वाली, दूसरी किस्म आंखें खोलकर खुद पर जबर करके गैर कुदरती ऊँघ लेने वाले। दूसरी किस्म में वो लोग शामिल हैं जो अपने तालीमी रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए और एक अच्छे स्टूडेंट का खिताब पाने के लिए आंखें मीच कर नहीं, उन्हें खोल कर सोते हैं। जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। मार्टन लाइब्रेरी से किताबें इशू करवा रहा है। बराए मेहरबानी ज़रा जल्दी करें और मुझे ये इशू कर दें, हाथ को किताबों पर रखते हुए। ये मेरा हाथ है, लाइब्रेरियन। ओ, मैं मजाक कर रहा था, आंखें मसल कर। ये रही मेरी 3 किताबें, इन्हें इशू कर दें। माजरत के साथ ये लाइब्रेरी की मलकियत है। हम अपने ज़ेर इस्तेमाल कंप्यूटर और दीगर मशीन इशू नहीं कर सकते। आपको सिर्फ किताबें ही इशू की जा सकती हैं। ओ, और आप समझते नहीं, मैं आपको हंसाना चाह रहा था, मजीद सख्ती से आंखें मसलते हुए। वेल, तुम्हारे जैसे 2-3 पहले ही मुझे बहुत हंसा गए हैं। मुझ में मजीद सकत नहीं रही हंसने की। अब ये काम तुम अपने प्रोफेसर और यूनी डैन के साथ जाकर करो। आप बुरा मान गए, मेरा मकसद महज तफरी था। मैं उस तरफ दाएं रुख खड़ा हूँ, और मेरी कॉफ़ी मग पर से भी हाथ उठा लो, ये भी इशू नहीं होगा। अब जैकब लाइब्रेरी आया है, मुझे मेरी मतलूबा किताबें नहीं मिल रही। मिलेंगी भी कैसे? हम कैंटीन में किताबें नहीं रखते। डैन का ऑर्डर नहीं है ना? जूनी कैंटीन गई है। एक वैनिला कोक नहीं, मेरा ख्याल है मुझे करीम कॉफी लेनी चाहिए। एक करीम कॉफी। ठीक है, किताबों की अलमारी में ढूंढ लो। 2 वैनिला कोक और करीम कॉफी मेरे लिए भी। जॉनसन अपने दोस्त के कमर में जोरदार घूंसा मार कर कहता है, तुमने मुझसे 20 पाउंड लिए हैं। मेरे मरने के बाद वापस करने का इरादा है? नहीं, एग्जाम्स में तुम्हारे पेपर चेक करने के बाद। प्रोफेसर विलियम की आवाज़ गूंजती है। कॉरिडोर जो प्रोफेसर को घूंसा पड़ने पर साकत सा हो गया था, फलक शगाफ कहकों से गूंज उठता है। ओ बेचारे जॉनसन, अब क्या होगा? खुदा पूछे इस नींद से। तो हमारा जिम इन दूसरी किस्म वालों में से था। बेचारा प्रोफेसर का मानना था कि वो रात भर आवारा गर्दी करता है और फिर उन्हीं की क्लास में ऐसे ऊँघता है जैसे उनका लेक्चर काबिल ही नहीं कि उसे सुना जाए। ये तो सरासर बेइज्जती हुई ना, जबकि जिम जॉब करता था और रात गए तक पढ़ता। आवारा गर्दी का तो उसके पास वक्त ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जिम की खिदमात दूसरे स्टूडेंट्स ने भी हासिल करनी शुरू कर दी, तो जिम ने कुछ असूल वज़ा कर लिए। अब जब भी काम करना ही था तो ज़रा तरीके से कर लेना चाहिए था ना। एक दिन यूनी के सिर्फ 5 पाउंड, बस ट्यूब से शिकार के पीछे पीछे रहायश गाह तक
10 पाउंड्स, दरमियान में 2 घंटे की ब्रेक, रात और 24 घंटे के 20 पाउंड्स, यानी शिकार के पीछे जिम बाजारों, गलियों, शॉपिंग और सेंटर तक जाएगा, सिर्फ एक हाथ का फासला रखकर। ज़ुम्बी स्टाइल में गर्दन को एक ही जाविये पर अकड़ाए जिम आज खुद घूरेंग। ज्यादातर सिर्फ यूनी का ही पैकेज लेते, बहुत कम दूसरा 20 पाउंड्स का पैकेज भी लेते। जिम के फन के दूसरे रहनुमा उसूल, उसे रिश्वत नहीं दी जा सकती। बेशक शिकार उसे अपना क्रेडिट कार्ड पकड़ा दे या 50,000 पाउंड हाथ से दे दे, शिकार का कोई कसूर होना जरूरी है। मासूम लोगों को वो तंग नहीं करेगा, और अगर बादअज़ां साबित हो गया कि शिकार मासूम था तो उसे 5 पाउंड देने के साथ वो यही सब मुफ्त में करेगा। तो जिम जब ड्यूटी देता तो यूनी में कह के बुलंद होते, जिम इज ऑन हिज वर्क, जिम अपने काम पर। मिशन अंबिका, डिपार्टमेंट बायोलॉजी, उम्र 20 साल, इंतहाई तेज तरार बदतमीज नमक मिर्च लड़की। कसूर अपनी क्लास फेलोज विलियन के लंबे कद पर फुबतियां कसना और उसे मिसेस एफल के नाम से डिपार्टमेंट में मशहूर कर देना। हाथ में 5 पाउंड लेकर इमराहा जिम के पास आई। कारल, बिजनेस डिपार्टमेंट, बदतमीज, इंतहाई बदतमीज, मेरे हाथ से किताबें छीन कर ले गया, फिर उन्हें जाया कर दिया, मुझे भारी जुर्माना भरना पड़ा, फिर मेरा जूता काट दिया, पूरे 150 पाउंड का था मेरा जूता। गुस्से और शर्मिंदगी से आने के गाल और कान सुर्ख हो गए। उसने आस पास नजर दौड़ाई, सब उन्हें ही देख रहे थे। जिम कारल के पीछे पड़ा था तो बदले के तौर पर कारल जिम की मंगेतर के पीछे। अना ने गुस्से से उबलते हुए जिम के हाथ पर जोरदार चुटकी भरी। पर मजाल है जो जिम ने CB की हो, यानी तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अब अना बेचारी की आवाज भीग गई। इमराहा की किस्मत ही खराब, क्या जरूरत थी जिम को यूनी में अपनी मंगेतर रखने की। इस तरह बिजनेस तो नहीं होते ना। उसके 5 पाउंड जाया हो गए। कारल को क्या कोफत हुई, उल्टा जिम ही कोफत का शिकार रहा अंदर ही अंदर। अब 5 पाउंड के लिए अपनी स्वीट हार्ट को नाराज तो नहीं करेगा ना, यकीनन। फिर 20 मिनट तक जिम को बेनुक्त सुनाने और नम आंखें रगड़ने के बाद भी जिम के इन हमाक में फर्क न आया तो आर्ट स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अना ने उंगली से अंगूठी उतार कर जिम की जेब में ठोंस दी। पापा ठीक कहते थे, तुम इंसान के नाम पर एक बनमांस हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सूसू करती अना चली गई। सब तो ये तवक्का कर रहे थे कि अना जिम को एक थप्पड़ से नवाजेगी, लेकिन वो तो उसे बनमांस साबित करके छोड़ के चली गई। इमराहा दूर से भी देख सकती थी कि कारल जेरे लब हंसा है। इमराहा पांव पटकती वहां से चली आई, क्योंकि जिम आखिरकार सूसू करती अना के पीछे भाग खड़ा हुआ था। अगर दादी ये मंजर देख लेती तो जिम और अना के पास आती और कहती, बेटा जिम मिल गया सबक, अब इस इमराहा से दूर रहना। कहो तो मैं तुम्हें इसकी हिस्ट्री शीट सुना दूं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। तुम्हारे साथ जो होना था वो तो हो चुका और काफी बुरा हो चुका। कारल पागलों की तरह हंस रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था मैनचेस्टर यूनी को उंगली पर फुटबॉल की तरह गोल गोल घुमाकर अपनी फतह का वाज़िया ऐलान करे और कहे, कौन है जो मुझे जिज कर सके। मैनचेस्टर यूनी स्टूडेंट्स और चंद दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट्स की सोसाइटियों ने मुकामी बरतानवी खानदानों से मुलाकात का एहतमाम किया था। इन मुलाकातों का मकसद एक दूसरे के मुआशरे, रस्म व रिवाज, तारीख, रुझानात वगैरह के बारे में जानना था। ऐसी मुलाकातें कुर्बत का बाइस बनती हैं। इमराहा ने अपना नाम पहले से ही दे दिया था और इमराहा को ओके कर दिया गया था। मुख्तलिफ मुल्कों के स्टूडेंट्स का 20 रुकनी ग्रुप मिस्टर एंड सस पाउल के घर पहुंच गया, जहां पाउल खानदान के साथ 2 खानदान मौजूद थे, मिस्टर एंड मिसिस एडम और मिस्टर एंड सस ग्रिल, और उन 3 खानदानों के 4 अदर शरारती और 1 सेकंड में 60 सवाल पूछने जैसे बच्चे। मुलाकात के लिए लॉन में नशिस्त का इंतजाम किया गया था। धुंध से अटे लॉन में कोयले की 2 बड़ी अंगीठियां रखी गई थी। उसके चारों इतराफ नशिस्तें लगाई गई थी। फूलों के गुलदस्ते जा बजा रखे गए थे। भालू से सफेद कुत्ते भी इधर उधर गश्त कर रहे थे। घर की इमारत धुंध में लुक छुप जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही जजीरे पर आ चुके हों। उन्हें इतने अच्छे खैर मकदम की तवक्को नहीं थी। इमराहा के पास सोफे पर एक 9 साला बच्ची स्कर्ट में मलबूस बैठी थी और इमराहा हलफ उठाने को तैयार थी कि बच्ची बहुत ही मासूम नजर आ रही थी।
تم کس نسل سے ہو؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا۔ وہ سنا ہے ہندوستان میں زبردستی شادیاں کروا دی جاتی ہیں، مسز ایڈم نے پوچھا۔ میں ہندوستانی نہیں پاکستانی ہوں، امراہ بری جز بز ہوئی۔ مسز ایڈم ہنسنے لگی۔ تم سب پاکستانی، انڈین، ہندوستانی کہہ لیے جانے پر اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ ہندوستانی سے مراد برس گیر ہوتا ہے، تم لوگ ہمیں یورپین کہتے ہو، ہم نہیں چڑھتے، جبکہ برطانیہ اور امریکہ میں بھی کبھی ایسا ہی ماحول تھا جیسا انڈیا اور پاکستان میں ہے۔ ہندوستان سے مراد ایک خطہ ہے جو بلا شبہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جسے یورپ میں جادو نگری کہا جاتا ہے۔ میرے رشتے کے چچا جب اپنے کاروبار میں دیوالیہ ہو گئے تو انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا۔ پہلے وہ بنارس گئے اور پھر سندھ۔ واپسی پر ان کا کہنا تھا کہ ان شہروں کو سفر نے انہیں پاگل ہونے سے بچا لیا۔ بنارس میں وہ سادھوؤں کے ساتھ وقت گزارتے رہے اور سندھ میں پیروں فقیروں کے ساتھ۔ امراہ خاموش ہو گئی، مسز ایڈم کے پوچھے گئے سوال کے بارے میں سوچنے لگی۔ امراہ کو ڈر تھا کہ اس سے یہ سوال پوچھا جائے گا اور وہ پوچھ لیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، جہاں تعلیم اور سوچ کی کمی ہے وہاں یہ سب ہوتا ہے۔ اسلام نے تو سختی سے لڑکا لڑکی کی مرضی پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، اسلام جبر کا مخالف ہے۔ جبر کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں۔ اور یہ جو غیرت کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں، لندن میں ایک پاکستانی لڑکی کو اس کے باپ اور بھائی نے مار کر تہ خانے میں دبا دیا تھا، مسز ایڈم بولی۔ امراہ کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ جس نے ایک انسان کا قتل کیا وہ کل انسانیت کا قاتل ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، زور زبردستی کی تو کوئی گنجائش نہیں، تو قتل کی کیسے ہوگی؟ وجہ کچھ بھی ہو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ اسلام کے دائرے سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا ذہنی جنون ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا قانون، ہمارا معاشرہ نہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی تعلیم۔ یہ اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ یہ خود مسلمان کہلواتے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان ہر حال میں وہی کرتا ہے جو 1400 سال پہلے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، نہ کم نہ زیادہ، ٹھیک وہی۔ ہم سب بھی ایسے لوگوں کو اتنا ہی ناپسند کرتے ہیں جتنا آپ لوگ کرتے ہیں۔ سب اس کی باتوں کو بغور سنجیدگی سے سنتے رہے اور سر ہلاتے رہے۔ باری باری پھر سب کے خاندانوں کے باروں میں پوچھا گیا۔ یعنی تمہارے وہاں ابھی بھی خاندان بڑے بڑے ہوتے ہیں؟ گڈ۔ کیا گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں؟ رہنے کے لیے امراہ نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا تو اس سے پوچھا گیا۔ امراہ گھڑبڑا گئی۔ یعنی کچھ کنبے جتنے زیادہ بڑے تھے، گھر اتنے ہی چھوٹے تھے۔ ان کے اس سوال کا مقصد طنز نہیں تھا، وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کنبے بنا کر انہیں پال بھی لیتے ہیں۔ امراہ کہاں سے چھوڑتی، کہاں سے بتاتی؟ ان کے گھر صفائی کرنے والی آپا کے 11 بچے تھے اور وہ ایک کمرے کے کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ دادا کے ایک دوست کے ساتھ شادی شدہ بیٹے 5 کمروں کے ایک گھر میں رہتے تھے۔ سب مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات امراہ نے کر دی۔ اگر کسی خاندان میں 4-5 بیٹے ہوں تو کیا وہ ایک ہی گھر میں ہمیشہ رہیں گے؟ گھر کی سربراہ ماں 5 بچوں کو ایک ہی گھر میں اپنے پاس رکھنا چاہیں گی۔ ایک ہی گھر میں 5 کو ان کی بیویوں اور بچوں کو؟ جی، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی وجہ سے کہیں الگ رہائش اختیار کرنا چاہے گا تو والدہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیں گی۔ کیوں؟ وہ روئیں گی کیوں؟ تینوں خواتین نے مشترکہ او کیا۔ وہ کسی ایک کو بھی خود سے جدا نہیں کرنا چاہیں گی۔ بچے بڑے ہو جائیں، خاص کر ان کی شادیاں ہو جائیں تو انہیں الگ زندگی شروع کرنی ہی ہوتی ہے۔ ہر ایک کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، پرسنل سپیس۔ کیا بات کر رہی تھی مسز گریل؟ امراہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ پاکستانی مائیں کیا جانے پرسنل سپیس یا پرائیویسی، انہیں تو اپنے لال اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے۔ بس وہ انہیں اتنا پیار کرتی ہیں کہ ان کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ اور بیٹے، وہ کیا کہتے ہیں؟ مشترکہ آؤ کے بعد پوچھا گیا۔ بیٹے بھی وہی چاہتے ہیں جو ماں جی چاہتی ہیں۔ آؤ! تینوں خواتین اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگی۔ وہ پاکستانی مشترکہ خاندانی نظام سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ امراہ انہیں دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کرداروں کے بارے میں مزید بتانے لگی کہ کیسے وہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہیں اور خاندان کو جوڑے رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے مشرقی لوگ جو مغرب کا سفر کرتے ہیں تو اپنے گھروں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ مسز ایڈم ٹشو سے آنکھیں
रगड़ने लगी। इमराह तिरछी नजरों से तीनों खवातीन को देखती रही। उसने यहाँ अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। डीएनए बच्ची खामोशी से इमराह के पास बैठी उसे हमतन गोश सुन रही थी। इमराह को सिर्फ एक उस बच्ची से डर था कि कहीं वो उसे गलत ना साबित कर दे। तुम अपने घर को याद करके रोती हो? डीएनए बच्ची ने पूछा। अब इमराह उसे क्या बताती कि उसे तो इस ख्याल से ही रोना आ जाता था कि उसे कभी तो वापस घर जाना ही है। नहीं, अभी मुझ पर यह नौबत नहीं आई। पाकिस्तानियों की कोई एक खूबी बताओ, वो मुश्किल हालात में भी जिंदा रहना जानते हैं। इमराह ने झट से कहा। मैनचेस्टर वालों की कोई एक बुरी खूबी बताओ, इमराह ने पूछा। हम बदतरीन हालात को बदलना जानते हैं, उसने मजबूत कुव्वत इरादे के साथ कहा। इमराह दंग सी देखती रह गई। उन सब के साथ ग्रुप फोटो ली गई। मिस्टर ईडम ने उनके लिए एक छोटी सी तकरीर की जिसके आखिरी जुमले को इमराह ने डीएनए बच्ची की तरह कॉपी में नोट कर लिया। There are never any winners or any loser. Participation is remembered that and enjoy the challenge of each moment as it arises now. इमराह अपने साथ इस्तेमाल शुदा एक गर्म शॉल, एक कश्मीरी तर्ज का शोल्डर बैग ले गई थी और एक पर्स। ये तीनों चीजें उसने इन तीनों खवातीन को पेश की और इन तीनों के चेहरे ऐसे धमकने लगे जैसे उन्हें बेशकीमत जवाहरात पेश कर दिए गए हों। जाते हुए उन सबको होम बैग हैप्पी दी गई। डीएनए बच्ची ने उसे अपना ईमेल एड्रेस दिया कि इमराह हर सूरत उसे अपनी रिपोर्ट भेज दे। इमराह उसे जरूर भेज देगी अगर वो अपना डीएनए करवाने में कामयाब हो गई तो, और खुशकिस्मती से वो रेड इंडियन भी निकल आई तो। मैनचेस्टर पकॉर्डली गार्डन में 230 फुट ऊंचा स्टार फ्लायर झूला था। इमराह देखोगी 230 फुट की बुलंदी से मैनचेस्टर कैसा लगता है? यूनी के बाग में गुमसुम बैठा देखकर वीरा ने करीब आकर उसे लालच दी और जबरदस्ती उसे अपने साथ बैठाकर पकॉर्डली गार्डन ले आए। कुछ वो उदास थी कि करीब से गुजरते आलियान को उसने हाय कहा तो वो इतनी तेजी से आगे बढ़ गया जैसे वो उससे कोई खैरात मांग रही हो और वो उसे खैरात देते देते थक गया हो, और कुछ वो अपने जहन को कहीं और लगाना चाहती थी ताकि कम से कम सोच सके कि वो मैनचेस्टर को 230 फुट की बुलंदी से देखने के लिए झूले में बैठ गई। लेकिन 230 फुट की बुलंदी से उसे मैनचेस्टर तो कहीं नजर नहीं आ रहा था, वहां से तो मौत नजर आ रही थी। मौत। वीरा ने उसकी कमर में घूंसा झड़ा। खामोश बैठो इमराह। लेकिन इमराह ने दूर, बहुत दूर धुंधले होते मैनचेस्टर को जैसे आखिरी बार देखा और सारे मैनचेस्टर को गवाह बनाया। मैं मरने जा रही हूँ, ओ मुझे बचा लो, हाय मुझे बचा लो। वो ऐसे चलाई और चलाती ही रही कि बहुत से वक्ती बहरे हो गए। यूनी के कई स्टूडेंट्स स्टार फ्लायर में मौजूद थे। गोल गोल झूमते झूले में बैठे उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठोंस ली। वीरा ने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखा। मरने वाले के कोई ऐसा करता है भला? वो मरने जा रही है, भला चलाए भी ना। दादाजी। वो तो इसलिए भी स्टार फ्लायर में बैठ गई थी कि रूसी कमांडो वीरा के सामने उसकी सुबकी ना हो, पर सुबकी बेहतर थी बानिस्बत मौत के, है ना? तुम इतना डरती हो? जमीन पर आते ही वीरा ने उसके बाजू पर जोरदार चुटकी भरी। इमराह सुनसी ना हो चुकी होती तो इस चुटकी पर चला उठती। मुझे नहीं पता था मैं इतना डरूंगी, वैसे ऐसे डरती नहीं, आज ना जाने क्यों डर सी गई। इमराह साफ झूठ बोल रही थी। मुझे यकीन हो गया था ये स्टार फ्लायर का आखिरी राइड था। ऊपर से हुकूमत इसे बैन कर देती। शुक्र था वहां कारल नहीं था। इमराह आसपास शर्मिंदा सी देख रही थी। जो लोग उनके साथ बैठे थे वो भी कड़े तेवरों से घूर कर गुजर रहे थे। हमारा तो मजा खराब कर दिया। यूनी चिक। इमराह रात को सोई तो फिर से 230 फुट की बुलंदी पर थी। आंख खुली तो साधना एन ऑन उसके सरहाने खड़ी थी। वीरा ने जरूरत महसूस नहीं की थी आने की। कोई बुरा ख्वाब देख लिया। साधना उसे पानी पिलाने लगी। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप दोनों जाएं। एन ऑन उसकी हथेलियां मसल रही थी। जब तुम ठीक होती हो तो इस तरह से चलाती हो, एन ऑन ने अपने दिल पर हाथ रख कर कहा और कमरे से चली गई। कोई परेशानी है तुम्हें? साधना उसके करीब बैठ गई। नहीं, तुम पहले जैसी नहीं रही। पहले जैसी कैसे? तुम मुरझा सी गई हो। ऐसे लगता है तुम्हारे अंदर कुछ सूखता जा रहा है। थक जाती हूँ ना। काश ये थकन ही हो और तुम बिल्कुल ठीक हो। साधना उसके बाल छूकर चली गई। काश ये ख्वाब ही हो और खिड़की के पीछे आलियान खड़ा हो।
کروٹ بدل کر اس نے سونے کی کوشش کی۔ اگلے دن اسے شروع کے 2 لیکچر چھوڑ کر اسے ایک پاکستانی گھر جانا پڑا۔ سادھنا کی کمر میں بہت درد تھا، اس لیے وہ اپنی ڈیوٹی دینے نہیں جا سکتی تھی، لیکن خاتون باضد تھی کہ ان کے گھر شام کو پارٹی تھی، اس لیے سادھنا ہر صورت اپنا کام کر کے جائے۔ سادھنا کو کمر پر ہاتھ رکھے کراہتے دیکھا تو عمران نے اس کی جگہ جا کر کام کی پیشکش کی، جو سادھنا نے بہت مشکل سے مانی۔ خاتون نے اس سے سارے گھر کا اتنا کام لیا کہ وہ واپس یونی جانے کے قابل نہیں رہی۔ یونی، جاب، پڑھائی، اسے یہ سب پہلے مشکل لگتا تھا، لیکن اب وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ زندگی تھوڑی سی مشکل تھی، بدترین نہیں۔ ہاں، جو سکون اس کے پاس ہوا کرتا تھا اب وہ کہیں نہیں رہا تھا۔ اسی دوران اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیکسپیئر کے سٹیج ڈرامے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ شیکسپیئر کے لکھے ڈرامے اچھے تھے، باکمال ہوتے تھے، لیکن سٹیج پر آ کر انہوں نے حد کر ڈالی تھی۔ اتنے زبردست، آنکھ جھپکے بنا دیکھتے جاؤ، اور دوسرے سیمسٹر میں کورس کی نوبت بدل گئی تھی اور وہ مشکل لگنے لگا تھا۔ یونی میں مشہور تھا کہ جب تک پہلے سیمسٹر کی کتابوں سے دوستی ہونے لگتی ہے اور سیمسٹر ختم ہو جاتا ہے، اور دوستی جو ہوتے ہوئے رہ چکی ہوتی ہے وہ ایگزامز میں دشمنی نبھا کر جاتی ہے۔ نہیں، اس میں بیچارے اسٹوڈنٹس کا کوئی قصور نہیں، وہ کتابوں کو بھی ایسے ہی سر پر سوار کرتے ہیں جیسے فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کو۔ انہیں پڑھنے کی بھی اتنی جلدی ہوتی ہے جتنی لاگ ان ہونے کی۔ امراہ کو ٹافورڈ شاپنگ سینٹر میں بالی ووڈ ڈھابا اچھے معاوضے پر جاب آفر ہوئی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا دل نہیں چاہا اپنا اسٹور چھوڑ کر جانے کے لیے۔ وہاں 7 سیلز مین اور 2 مینیجر تھے، وہ ان سب کی عادی ہو چکی تھی، بغیر کسی وجہ کے ان سے وابستگی محسوس کرتی تھی۔ امراہ تبدیلی کو پسند بھی کرتی تھی اور تبدیلی سے خائف بھی رہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک چیز کے لیے پوری شدت سے تبدیلی کی خواہش کی، اپنے ماحول کے بدل جانے کی۔ پاکستان میں اس کے لیے بنا دیے گئے ماحول میں اس کا دم گھٹتا تھا، وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اور اب یہاں اسے ہر چیز کے ساتھ گہری وابستگی محسوس ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کے ساتھ، اپنی کلاس کے ساتھ، کلاس میں موجود اپنی نشست کے ساتھ، کلاس ڈور تک کے ساتھ، یونی کے ایک درخت کے ساتھ، گھاس کے ایک خطے کے ساتھ، یونی میں جا بجا استدا خاموش مشہور شخصیات کے مجسموں تک کے ساتھ بھی، ہر چیز اسے اپنا آپ محسوس کرواتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ مینچسٹر میں مہمان ہے، اور یہی چیز اسے قرب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ آکسفورڈ روڈ پر واقع چرچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ کبھی کبھی دادا سے بات کر لیا کرتی تھی، ورنہ خاموش بیٹھی آتی جاتی ڈبل ڈیک بسوں کو تکا کرتی تھی، اور ہنستے ہوئے مسکراتے باتیں کرتے اسٹوڈنٹس کو کس قدر حسرت لیے دیکھا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ بھی ہنسنے والوں میں شامل رہی تھی۔ بے فکری تھی۔ چرچ کی سیڑھیوں پر اکیلے بیٹھنے کی نوبت وہ خود لے آئی تھی۔ وہ اکثر وہاں پائی جاتی اور سوچا کرتی کہ اگر اسے پاکستان جانا ہے تو ان سب چیزوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ یہ سب جو اس کا اپنا نہیں تھا، لیکن جس نے اسے اپنا بنا لیا تھا، یہ سب اپنا ہے، یہ سب اپنا نہیں رہے گا، یہ یہی رہ جائے گا۔ اگر یہ سب یہی رہ جائے گا تو وہ خالی ہاتھ رہ جائے گی نا، تو کیا مینچسٹر اسے سب دے کر سب واپس بھی لے لے گا؟ دوسرے سیمسٹر میں اس پر خوف طاری کر دیا گیا۔ دوسرا سیمسٹر بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، تیسرا اور چوتھا بھی، بس پھر سب ختم، چلو گھر واپس۔ اسی ماحول میں جس میں وہ نجست تھی، وہ رات کو مینچسٹر میں سوتی، صبح آنکھ کھلتی تو لاہور ماڈل ٹاؤن اپنے گھر میں ہوتی۔ دادا کے کمرے کی کھڑکیوں سے روشنی لکیر بناتی این اس کی آنکھوں پر برس رہی ہوتی۔ تل ملا کر وہ آنکھ کھولتی، سامنے ہی دادا اور اس کی مشترکہ دیوار پر جگمگا رہی ہوتی۔ وہ چیخ مار کر اٹھ جاتی، میں لاہور کب آئی؟ مینچسٹر کہاں گیا؟ اس کی دل کی دھڑکن کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ جاتی۔ شٹل کاک کے نیم اندھیرے کمرے میں وہ گہری گہری سانسیں لے رہی ہوتی۔ اٹھ کر کھڑکی تک جاتی، باہر مینچسٹر پر نظر دہراتی۔ اسے پھر بھی لگتا یہ خواب ہی ہے، حقیقت میں تو وہ ماڈل ٹاؤن اپنے گھر کے بیڈ پر سوئی یہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ویرا کو فون کرتی، ویرا صبح یونیورسٹی جانا ہے۔ نہیں، صبح تمہیں الیکٹرک چیئر پر بٹھایا جانا ہے، صبح تمہاری موت کا دن ہے، ویرا چلا کر کہتی۔ وہ کئی بار اس بیچاری کو ایسے ہی تنگ کر چکی تھی،
तुम्हें ये रातों को क्या दौरे पड़ते हैं इमराहा? सुबह वीरा पूछती। वो अब उसे अपने दौरों की कैफियत क्या समझाती कि जब उसकी आंख लाहौर में खुलती है तो उस पर क्या गुजरती है। वो साईं के पास अगली सुबह आई। साईं, मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हारी शादी हो रही है। अच्छा? वो मुस्कुराने लगा। क्या मुझे ये नहीं पूछ लेना चाहिए कि किसके साथ? हाँ, पूछ लो। लड़की का चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन उसने चोली पहन रखी थी, हाथों में गोल गोल मेहंदी लगा रखी थी। बसंत बहारी रंगों ने साईं के वजूद का अहाता किया। सुना है ख्वाब उल्टे होते हैं, जैसे वो नजर आते हैं उससे। ये उलट नहीं होगा। मेरे दादा कहते हैं फजर के वक्त देखे गए ख्वाब सच्चे होते हैं। क्या वाकई? बसंत बहारी रंग फिर से उसके वजूद के गिर्द उड़ाने भरने लगे। मुझे हैरत है कि तुमने मेरे लिए ख्वाब देखा। मुझे हैरत नहीं है, हम बाकायदा दोस्त ना सही, हम में एक ताल्लुक तो है। तुमने कितनी बार सुना है मुझे? साईं की आंखें नम हो गई। वो से इट ऑल था। पूरी यूनी उसके पास आती थी और वो उसके पास कोई नहीं होगा। शायद मैं जज्बाती हो रहा हूँ। मुझे तुम्हारा ख्वाब अच्छा लगा। क्या तुम मुझे अपनी शादी में बुलाओगे? क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हाँ, जरूर आना, आलियान के साथ। ओ, उसने अपनी जुबान पकड़ी। वो वाकई जज्बाती हो रहा था। उसकी जुबान फिसल गई थी। मतलब आलियान भी उसके पास आया था। शायद आधी रात को आया हो, उसे जगाकर बोर्ड को उसके पास टकाकर, या उसे अपने साथ चहलकदमी पर आमादा करके। बहार से पहले और बहार के बाद न जाने वो कितनी बार आ चुका होगा साईं के पास। इमराहा से मिलने के बाद और इमराहा को छोड़ देने के बाद। साईं के सामने कह के लगाते हुए, साईं के सामने आंसू छुपाते हुए। एक बार इमराहा ने आलियान से पूछा था, तुम कभी साईं के पास गए हो? हाँ। वो शरारत से मुस्कुराने लगा। मस्खरी हंसी। तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? ऐसे कैसे? मस्खरी सी। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं मस्खरी हंसी हंस रहा हूँ। एक बार मेरी बहन भी ऐसे ही हंसी थी। मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे। दोबारा नहीं, उसने मुझे चुराया था। मैं तुम्हें चुरा तो नहीं रहा। अलबत्ता तुम मेरे बाल पकड़ सकती हो। वैसे बाल पकड़कर तुम क्या करती हो? मैंने उसका सर दीवार में दे मारा था। गैर इरादी तौर पर आलिया ने उससे एक कदम दूर हुआ अपना सर बचाने के लिए। इमराहा ने फलक शगाफ कहका लगाया। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मजाक ही कर रही हो। वो रुक कर उसे देखने लगा। मैंने ऐसा किया है। इमराहा को उसकी हैरत अच्छी लगी। तुम बहुत छोटी होगी तब ना? हैरत से उसकी आंखें इमराहा पर ठहर सी गई। नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में थी तब। और उसका क्या बना? बाएं हाथ की पहली उंगली को उसने बाएं आंख के किनारे रखा। किसका? मेरी बहन का। इमराहा को उसकी हैरत अच्छी लगी। नहीं, उसके बेचारे सर का। ठीक ही रहा। बस अब वो जरा तेज आवाज में बात करे तो उसके सर में ठेस उठती है। इमराहा ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा, क्या अब तुम भी तैयार हो अपने बाल पकड़वाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने सर को उससे 215 और दूर ले गया। और फिर तुम बताओ, तुमने साईं से क्या कहा? मेरे बारे में ही कुछ कहा होगा। तुम्हें ये यकीन क्यों है कि तुम्हारे बारे में ही कुछ कहा होगा? तुम्हारे हंसने के अंदाज से। क्या तुमने उसे ये बताया है कि मैं बैं बैं करके रोती हूँ और ऐसा करते किस कदर बुरी लगती हूँ? या तुमने उसे ये बताया है कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था? आलियान लब दबाए अपनी हंसी दबाने की कोशिश करता रहा और जब मजाकन सिर्फ उसे डराने के लिए इमराहा ने हाथ उसके बालों की तरफ बढ़ाए तो वो कहका लगाता हुआ भाग गया। मैं अब उसे ये बताने जा रहा हूँ कि वो तुम जैसी खूनख्वार जंगली बिल्ली से बच कर रहे। जाते हुए वो कह कर गया। साईं देख रहा था कि इमराहा चुप की चुप ही रह गई है। इमराहा, साईं ने उसे मुतवज्जा किया। खामोशी से साईं को देखकर इमराहा उसके पास से चली आई और बिजनेस डिपार्टमेंट आ गई। काश आज तो उसे आलिया नजर आ जाए और कॉरिडोर में दीवार के साथ सर टकाए, एक सीधी और एक तिरछी टांग खड़ी किए अपने आईफोन के साथ मसरूफ वो उसे नजर आ गया। इमराहा को खुद को देखकर लगता था कि वो इतने बड़े मैनचेस्टर में अकेली रह गई है, जबकि उसे देखकर उसने जाना था कि अकेला होना किसे कहते हैं। वो ऐसे खामोश खड़ा था जैसे उसकी जुबान ने कभी कलाम की जहमत ही नहीं उठाई। ना वो ये ख्वाहिश रखती है। कोई इतना खामोश हो सकता है कि उस पर यह गुमान गुजरे। आलियान पर यह गुमान पुख्ता हो रहा था। जिन बहारों को साथ लिए वो चला करता था, उन सब बहारों को खफा किए, उनसे खफा हुए वो बेनूर सा खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराने पर मायल लोग मुस्कुराहट रोक लेने पर मजबूर हो जाते थे। इमराहा को उसकी इस शबीह ने शाकर और जामद कर दिया। क्या ये आलियान था? तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? वीरा पीछे से आई। उसके हाथ में कॉफी के मग थे। मैं तुम्हें ढूंढने आई थी।
क्या मैं गुम हो चुकी हूँ? कब? मुझे तुम्हारा फोन चाहिए था, दादा से बात करनी है। मेरे फोन में कुछ मसला है, लाओ अपना फोन दिखाओ। वो वीरा थी। वीरा 0070। तुम अपना फोन दे रही हो या नहीं? इमराहा ने बुरा मानने की अदाकारी की। अपना फोन दो, मैं ठीक कर देती हूँ पागल। वो मैं घर छोड़ आई हूँ। इमराहा की किस्मत खराब कि उसी वक्त उसके बैग की ऊपरी जेब में रखे फोन पर किसी का मैसेज आया। किस पागल ने उसे इस वक्त मैसेज भेजा था? ये कोई वक्त था भला? वीरा ने दाएं आंख की कुमान उचकाई। यानी वो तो घर है ना इमराहा, है ना? ओ, ये तो मेरे पास ही है। इमराहा की अदाकारी अरूज पर थी। और भी कुछ देख लो, क्या क्या तुम्हारे पास ही है जिसे तुम गुमशुदा समझे बैठी हो? ये कॉफी किसके लिए है? मेरे और आलियान के लिए। ना जाने क्यों, लेकिन उसे लगा कि गर्म कॉफी वीरा ने उस पर अंधेल दी है। वो है कौन आलियान के लिए कॉफी ले जाने वाली? और आलियान क्यों पिएगा उसकी कॉफी? जी नहीं, नहीं पिता, वो ऐसे वैसों की कॉफी। ट्वीट सोच का ये रेला एकदम से उसके जहन में आया। वो तेजी से जाने लगी और जाते जाते अपने एशियन फ्लैग के नाम से मशहूर हो चुके दुपट्टे को तेजी से संभालने की ऑस्कर अवार्ड अदाकारी करते 216 की कॉफी गिरा बैठी। ओह सॉरी, क्रीमी अवार्ड अदाकारी। वीरा की दाएं आंख की कुमान फिर से उचकी। इमराहा? वीरा ने इतना ही कहा था कि इमराहा जल्दी से वापस पलट आई। आलियान उससे नाराज है। ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि ख्यालात का हिजूम उसके दिमाग में झक्कड़ की तरह चलने लगा। वो आलियान को देखने क्यों गई थी? क्यों? ये सवाल उसके अंदर बाज गश्त बन गया। सब ठीक हो जाएगा या बस अब खत्म हो जाएगा? इमराहा बिला वजह यूनी के चक्कर लगाने लगी। उसे किसी पल चैन नहीं था। सो झूठ सच बोलकर उसने अपने आप को तसल्ली दे ली थी, तो वो तसल्ली कायम क्यों नहीं रह रही थी? वो पागल बनी बिला वजह यहाँ वहां घूम रही थी। ये क्या तुम तितली बनी चकरा रही हो? किसी ने कभी उसके पीछे आकर कहा। मैं यूं ही घूम रही हूँ। मैं तुम्हें रोज ही यूं ही घूमते देखता हूँ। कितना घूमना है तुमने? मुझे ऐसा करना पसंद है, लेकिन ठहरो, तुम रोज मेरा पीछा करते हो? एकदम उसके चेहरे के रंग बदले, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। ऐसी बातें मालूम हो ही जाती हैं। तुम मेरी जासूसी करते हो ना? उसे जासूसी का नाम नहीं दिया जा सकता। बैग में से उसने 2 लॉलीपॉप निकाले, एक खुद खाने लगा, एक उसके आगे किया। क्या तुम दाइम के लिए काम कर रहे हो? उसे ये खौफ रहता है कि यूनिवर्सिटी में जरूर कुछ उल्टा सीधा करके पाकिस्तान का नाम ले डूबेगी। उसे मेरी समझदारी पर शक क्यों है आखिर? लॉलीपॉप मुंह में लगाए वो जी जान लगा कर हंसा। तुम बातों को कितने रुख दे डालती हो इमराहा। तुम ऐसी बातें करना कहाँ से सीखती हो? ना मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ, ना ही दाइम ने मुझे तुम्हारे पीछे लगाया है। वैसे पाकिस्तान में तुम काफी मकबूल रही होगी। इमराहा सन्नाटे में आ गई। अब इसे कैसे मालूम? ये इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? उसका रंग फक हो गया। लॉलीपॉप मुंह से निकालकर वो बुलंद बांग कहका लगाने लगा। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि मेरी बात को फिर से तुमने अपनी मर्जी का रंग दे डाला है। तुम बातों को अपनी मर्जी का रंग देती हो और ऐसे गुस्सा करती हो, भड़कती हो और चढ़ जाती हो। कितना जरखेज दिमाग है तुम्हारा इमराहा। मैंने आज तक इतना जरखेज दिमाग किसी का नहीं देखा। इमराहा नित नई सोचों की अजीम शाहकार। हा हा हा। ये पकड़ो अपना लॉलीपॉप। मैं नहीं खाती, बच्ची नहीं हूं मैं। वो बुरा मान गई और आगे बढ़ गई और वो लॉलीपॉप पकड़े उसके पीछे हो लिया और तब तक उसके पीछे ही रहा जब तक उसने वो लॉलीपॉप खा लिया। खुद से और सोचों से थक कर इमराहा ने खुद को थका डाला। ऐसी थकन जो किसी आराम और दवा से जाने वाली ना थी। खेल तमाशा किताब 10 बार से ज्यादा लेडी महर को सुनाई जा चुकी थी। मास्टर बाली और रजनी ने शटलकॉक में देर तक राज किया था। लेडी महर का दिल ही नहीं भरता था इस किताब को सुन सुनकर, और इमराहा को ऐसे याद हो गई थी कि वो आराम से शुरू से आखिर तक तकरीर की तरह उसे सुना सकती थी। 10वीं बार तो इमराहा ने किताब पकड़ने की जहमत ही की थी, वरना किताब तो उसे अजबर हो चुकी थी। फिर इमराहा उन्हें एक मोहब्बत सो अफसाने सुनाने लगी। नहीं, अशफाक अहमद के लिखे नहीं, यूनिवर्सिटी में लिखे जाने वाले चलते फिरते अफसाने। साईं की तरफ से तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन दीपा गुजरात से है और सुना है उसके खानदान वाले खासे रवायती हैं। उन्हें अगर मालूम हो जाए कि दीपा एक सियाह फाम ईसाई को पसंद करने लगी है तो मुश्किल से ही उसे एक भी दिन यूनी में रहने दें। लेडी महर सर हिलाती रही। उन्हें साईं की कहानी जज्बाती कर दिया था। मुझे तो आलियान की फिक्र होने लगी है तुम्हारी कहानियां सुन सुनकर। इमराहा ने लेडी महर को देखकर नजरें चुरा ली। शार्लेट भी आने वाली है, फोन आया था उसका।
उसका। आलियान भी शायद किसी नमूने को पसंद कर चुका होगा। वो खामोश सी हो गई। आलियान कितना भी इनकार करे मैं जल्द ही उसकी शादी कर दूंगी। वो कहता है कामयाब बिजनेसमैन बन जाऊंगा तो सोचूंगा, लेकिन तब तक शायद मैं देख ना सकूं। मुझे इनकार तो नहीं करेगा, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहती। अब उससे बहुत प्यार करती है ना? नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसकी मोहब्बत मुझे हैरान कर देती है। मैंने 1 साल पहले उसे मना किया था कि मुझसे पूछे बगैर घर ना आया करे। देख लो, मेरी सालगिरह के अलावा वो कभी मुझसे पूछे बगैर घर नहीं आता। वो कुछ ना कहे मुझसे, मेरे लिए कुछ खास ना करे। मुझे खबर हो जाती है कि मेरे 10 बच्चों में से सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत करता है। दूसरे बच्चे एहसानमंद होकर अकीदत में मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब पहली बार मैंने उसे गोद में बैठाया और उसकी रोती हुई आंखों को चूमा तो वो ऐसे मेरे सीने से लग गया जैसे मुझ में समा गया हो। वो मुझसे बार बार पूछता, मैं उसे छोड़कर तो नहीं जाऊंगी। उसकी माँ के बाद मैं दूसरी औरत हूँ जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता है, और मुझे यकीन है तीसरी औरत उसकी बीवी होगी जिस पर वो कुर्बान ही हो जाएगा। आलियान बहुत समझदार है, लेकिन बाज मामलात में वो बहुत शिद्दत पसंद भी है। आलियान के माँ बाप, खानदान, उसने हिम्मत करके पूछा। एक बार पहले भी उसने ये हिम्मत की थी और लेडी मेहर ने कहा था कि वो अपने बच्चों के माजी के बारे में उनके अलावा किसी और से बात करना नहीं चाहती। ये बहुत हसास मामला है। तुम आलियान की दोस्त हो इमराहा, लेकिन ये गलती कभी ना करना उससे उसके माजी के बारे में पूछने की। एक बार मैंने कोशिश की थी, उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं इस बारे में कभी बात ना करूं। वो तकलीफ से गुजरना नहीं चाहता। इतने से जिक्र पर वो कई दिन गुमसुम रहा था। एक दिन वो ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ। हर दुख और सदमे के भरने का अपना एक अलग वक्त और अंदाज होता है। मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुशबाश है। बहुत मुश्किल से मैंने उसे ठीक किया था। जब तक वो और ठीक ना हो जाए मैं और किसी को उसे तकलीफ नहीं देने दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। खानदान के नाम पर उसके पास सिर्फ एक माँ थी जो जवानी में ही मर गई। अब मैं हूँ उसका खानदान, इसलिए मुझे ये डर लगा रहता है कि वो किसी एशियाई लड़की को पसंद ना कर ले। जात पात और ख़ानदान ये सब एशियाई लोगों के लिए बहुत अहम होता है। 1 साल पहले यूनी में आलियान का एक दोस्त बना था, पाकिस्तान से था। अच्छा दोस्त था उसका, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि आलियान की माँ एक ईसाई औरत थी तो उसने आहिस्ता आहिस्ता आलियान से ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया। कहाँ वो आलियान को अपनी ज़मीनों और बागों की सैर को बुला रहा था। आलियान बहुत आबदीदा हुआ उस लड़के के सलूक से। ज़माना जाहलियत में जो लोग बुतों की पूजा करते थे वो मुशरिक थे, फिर मुसलमान हो गए, लेकिन उनमें से बहुत सौ के घर वाले मुसलमान नहीं हुए थे। तो क्या जो मुसलमान हो चुके वो इसलिए काबिले नफरत रहेंगे कि उनके ख़ानदान के लोग अभी भी मुशरिक हैं? जब आलियान छोटा था मैंने उसे बताया था कि उसके कागजात में 2 मज़हब लिखे गए हैं, मुसलमान और ईसाइयत। उसे दोनों मज़ाहब की तालीम दी गई है। मैंने उससे दरख्वास्त की कि वो बालिग होने तक ऐसा कोई काम ना करे जो इस्लाम के मुनाफी हो, और उसने मेरी दरख्वास्त मानी। मैंने ईसाई बच्चे भी पाले हैं इमराहा, लेकिन मैंने उनकी मजहबी तालीम में कभी अपनी खुदगर्जी को आरे नहीं आने दिया। मैं चाहती तो अब सब बच्चों को इस्लाम कबूल करने के लिए कह सकती थी। वो मुझसे इतने मुतासर थे कि फौरन मेरी बात मान लेते। वो मुझे खुदा के बाद का दर्जा देते थे, लेकिन मैं अपनी ज़ात में छोटी हो जाती। मेरे 2 बेटे इस्लाम की स्टडी कर रहे हैं। अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। शार्लेट और मॉर्गन कभी गैर मुनासिब लिबास नहीं पहनती। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरी रवायात में से कुछ को उन्होंने अपनाया। वो मुझे वजू करवाते रहे हैं। मैं कुरान पढ़ा करती थी तो मेरे पास आकर बैठ जाया करते थे। अजान पर खामोश हो जाया करते हैं। उन्हें याद होता है कि रमज़ान कब आएगा, ईद कब होगी। जो अहादीस और अहकाम उन्हें सुनाए हैं वो उन्हें याद हैं। देखो इमराहा, हम सच्ची मोहब्बत में सब कुछ कर सकते हैं, सब, लेकिन तंग दिली, खुद गर्जी और तासुब को दिल से ख़त्म करना होता है। दिल को साफ करो, पाक करो, तो ही मोहब्बत मुकद्दस होकर उड़ती है। जैसे खुदाई हस्तियों पर खुदाई पैगामात नाजिल होते हैं, मोहब्बत भी तो खुदाई पैगाम होती है। मोहब्बत हिसाब किताब से बड़ी होती है। दिल में बाल बराबर फ़र्क भी हो तो मोहब्बत अपना रुख बदल लेती है, मुंह फेर लेती है। उसके अब्दी कयाम के लिए वजूद को पाकीज़ा रखना पड़ता है। इमराहा खामोश थी, उसे खामोश ही रहना था। चंद दिनों बाद उसने एक सूटेड बूटेड आदमी को तेज आवाज में नशिस्तगाह में बहस करते सुना। नशिस्तगाह का दरवाजा बंद था, फिर भी आवाजें बाहर आ रही थी। कौन है ये? इमराहा ने साधना से पूछा। मालूम नहीं, 1.5 साल पहले आया था, काफी बहस करके गया था।
पुलिस बुलवानी पड़ी थी। बाद में ये घर की तरफ में घूमता फिरता देखा गया था। इमराहा ने रात को लेडी मेहर से पूछा तो उन्होंने सख्ती का ऐसा तासुर दिया कि इमराहा माजरत करके उठ आई, यानी दूर रहो इस मामले से, और इमराहा दूर हो गई। रात को अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी पड़ रही थी कि उसने आलियान को देखा। ये पहली बार था, उसे देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसकी साइकिल के पीछे वीरा बैठी थी। शटल कॉक के बाहर उसे उतार कर वो चला गया और वो जरा सी लंगड़ाती हुई अंदर आ गई। क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? इमराहा ने बड़े तनकीदी नजरों से उसके पैर को देखा। उसे उसके पैर की कतन कोई फिक्र नहीं थी। सड़क पर गिर गई थी, हल्की सी चोट आ गई है। तुम्हारी साइकिल कहाँ है? आज तो मैं साइकिल पर गई ही नहीं, तो तुम वापस कैसे आई हो? वीरा ने बड़े आराम से देखा। इमराहा, तुमने खिड़की से देख तो लिया है कि मुझे आलियान छोड़ कर गया है। इमराहा को खामोश होना पड़ा, यानी उसका पाँव टूटा। उसने आलियान से कहा कि मुझे घर छोड़ाओ रात के इस वक्त, और वो भी आ गया। रात गहरी स्याह हो गई और नींद से उड़ान भर ली। सारी रात आसमान से स्याही बरसती रही। सब कुछ उसके स्याही के लबादे में मलफूफ हो गया। उसके लिए अगली कई रातें सोना दूबर हो गया। उसने फिर हिम्मत की आलियान के पास जाने की। दोबारा गई और उसकी पुश्त देखकर सहम कर पलट आई। वो आंखें जो उसे देखकर जगमगाया करती थी, अब उसे पहचानने से भी इनकारी हो जाती, तो वो रो पड़ती और फिर एक बार उसे पुकारने की जुर्रत कर बैठी। आलियान! अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहा था। दोस्त चला गया तो वो उसकी तरफ पलटा। इतनी देर लगी उसे पलटने में, उससे अगली बात ना हो सकी और घबरा कर उसने बैग में से एक अदद चॉकलेट उसके आगे की। ये लो मेरी तरफ से ट्वीट। एक लम्हे के लिए सही, लेकिन वो हैरान हुआ। मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। इमराहा ने मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि वो रो देने को थी। मैं ट्वीट नहीं लेता। उसने अपना रुख मोड़ लिया। तो मुझे दे दो, मैं अभी भी लेती हूँ। उसकी पुश्त से वो बोली। आवाज कांप रही थी और वो खुद भी। आलिया ने जरा सी गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। वो लाजवाब हो चुका था। सिर्फ एक लख्ते के लिए वो पुराना आलियान नजर आया और वो फिर तेजी से आगे बढ़ गया, जैसे किसी भूले भटके इंसान ने उसे रास्ता पूछने के लिए रोका था। कितना कुछ बदल गया है, कितना कुछ बदल रहा है। इमराहा ने उसे दूर तक जाते देखा और जब वो नजर आना बंद हो गया तो पलट गई। जिस वक्त वो पलटी उस वक्त आलिया ने उसे बहुत दूर से खुद को मुकम्मल छुपा कर जाते देखा।